Alright, so hello guys, welcome back to the channel. Start करते हैं with a new topic that is array implementation of stack. तो मतलब बेसिक करेंगे क्या हम इस वीडियो के अंदर array की मदद से stack को implement करेंगे. तो start करते हैं. Okay, everything goes fine. Yeah, here it is. So इसके अंदर हमारे पास होगा क्या? array होगा. That is this is an array जो हमारे पास है. The elements of like 2, 3, 4, 5, 9. Alright, so ये elements हमारे array के अंदर. To implement stack, there are mainly 4 operations. That is, सबसे पहले top आ जाएगा, उसके बाद push, then pop, and then empty. So basically 4 topics हम cover करने हैं to implement stack. Alright. Okay. So start with the top, the first element. This is top. So to implement top जो variable है, reference variable, उसके लिए हमें variable बनाना पड़ेगा. That is point you can say. And उस point को initially array का initialize करेंगे at this location. That is -1th location. Just a reference की हमको ये पता लगे कि array खाली है. If a top point at this location, that means our array is empty. And coming to the next topic, that is push. So initially हमारे से array खाली है. So whenever we have to perform a push operation, first of all हम क्या करेंगे? सबसे पहले increase करेंगे top की value by 1. So सबसे पहले increase होगा top plus plus. Alright. और array के top index पे, that is array के top वाले index पे अब हम value अपडेट करते हैं. जैसे सपोज को push करना है 5. So array of top के अंदर 5 value initialize कर देंगे. And same goes for the pop operation. I'll just erase it. Now to implement a pop operation, suppose आपके पास इनमें से 5, 6, 7 and top में आप करें इस लोकेशन. हमने पढ़ा था कि top हमेशा पॉइंट करते हैं से top मोस्ट जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है. Leave 4. Please don't forget it. Okay. Leave 4. Last in first out. So basically जो last हमारा इनपुट होता है 7. So top pointer हमारा इसको पॉइंट करेगा 7. Now to implement a pop operation, सबसे पहले क्या करना है? इस top मान वेरिएबल है, इसको डिक्रीज कर देंगे. That is, इसको rather than pointing to 7, हम इसको पॉइंट करवा देंगे to the previous element index. So अब एक पॉइंट करेगा 0 फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा. क्योंकि एरे के अंदर जैसे हम एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं. So now we have work upon indexes 0, 1, 2, 3 and so on. Alright. तो जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे टॉप वेरिएबल को एक प्रीवियस इंडेक्स पे जंप करवा देंगे. So that's how we will implement our pop operation. And for the empty operation, and to perform our empty operation, अगर हमारा टॉप वेरिएबल सपोज रजिस्टर पॉइंट करता है, अगर ये पॉइंट करे -1 लोकेशन पे, that means our stack is empty. So if this top variable, say ये get after this variable, so if top is pointing to this location, that means our stack is empty. And मैंने कहा था कि ये empty function है, it is a boolean type function. So it will be returning like true or false. So if it is pointing to the -1 location, that means the stack is empty. So it will return true, or else it will return 0. Or else false. Alright. So basically ये थोड़ा स्ट्रक्चर है about array implementation of stack. Start करते हैं the code and जब करते हैं code editor पे. Alright. So just a second. Okay, I'll just open my C++. Otherwise, screen pass out. Okay, so here we go. So to implement stack, it's video number 86. Control S. सेव कर देता हूँ पहले इसको. video dash 86. Alright. तो सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं with name as stack.
ये हमारे ऑप्शनल हमने क्लास पढ़ा हुआ है पहले वीडियो में, सो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको. एंड we'll declare a top variable as private, so in top, okay, इसको इनिशियलाइज कर देता है -1 से, एंड -1 मीन्स कि वो इनिशियली पॉइंट कर रहा है मतलब खाली है स्टेट. ऑल्सो एक एरे का साइज डिक्लेयर करनी पड़ेगी हमको, जिससे कि पता लगे कि एरे के अंदर क्या साइज है. ऑलराइट, सो वी विल डिक्लेयर द साइज ऑफ एरे यूजिंग प्री प्रोसेसर एज डिफाइंड, सपोज n with 10 variables. सो दिस इज कॉल्ड अ प्री प्रोसेसर. हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया था पहले वीडियो के अंदर. एंड प्री प्रोसेसर मीन्स मतलब कंपाइलेशन से पहले हम इस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं विद दिस ग्लोबल वेरिएबल एंड विद द वैल्यू ऑफ 10. ऑलराइट, सो पूरे कोड के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल है वाला ये वैल्यू. नाउ इन द पब्लिक सेक्शन ऑल्सो हमने कैरे डिक्लेयर नहीं किया, माई बैड. एरे ऑफ साइज n. सो इन द पब्लिक सेक्शन हम सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे एक जिसको void टॉप फंक्शन हो. ओके, तो पहले पुश करते चलो, बेसिकली पुश से स्टार्ट करते हैं. void पुश हमको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है. दैट इज सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है एज अ पैरामीटर सपोज x. सो टू पुश अ एलिमेंट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कंडीशन कि हमारे स्टैक के अंदर कोई स्पेस है कि नहीं है. तो अगर हमारे टॉप की वैल्यू अगर वो बराबर होती है n-1 के, टॉप हमारा पॉइंट करता है -1 को, एंड -1 जब इंक्रीमेंट होगा तो 0 होगा. तो एरे का 0th इंडेक्स, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0 से, तो इसलिए हमने टॉप को कंपेयर किया n-1. राइट, मैं आपको वापस समझा देता हूँ, देखो जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो देखो ये टॉपिक ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है ताकि काम आए. तो सपोज ये एरे है, इंडेक्स लिखता हूं, ठीक है, 0th इंडेक्स, 1st, 2nd, 3rd, 4th. तो साइज ऑफ एरे क्या हो जाएगी 5. नाउ टू चेक इफ हमारा जो स्टैक है वो कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं है. तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा एरे, हमारा टॉप वेरिएबल है, वो पॉइंट करे इस लोकेशन को, -1 लोकेशन को, एंड एट एवरी पुश ऑपरेशन हमारे स्टैक की टॉप वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी बाय 1. सो सपोज यहाँ पे आएगा तो टॉप वैल्यू क्या होगी 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4. तो एट द लास्ट इंडेक्स, तो एट दिस इंडेक्स पे हमारा टॉप पॉइंट कर रहा है, तो इस इंडेक्स पे टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 4. टॉप की वैल्यू हो जाएगी 4, और हमारे साइज की वैल्यू क्या थी, दैट इज n. ये हमारा n है, n की वैल्यू 5 है, एंड हमारी n की वैल्यू 5. तो हमने कंपेयर क्या किया, अगर टॉप की वैल्यू दैट इज 4 की वैल्यू के बराबर है n-1, दैट इज 5 - 1, तो 5 - 1 इट इज 4. अगर 4 की वैल्यू 4 के बराबर है, दैट मींस टॉप की वैल्यू इफ इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n-1, so that means our stack is at full, completely filled. मान लो सारे में filled है, तो आगे कोई स्पेस बचेगी. तो आफ्टर दैट हमको उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर नहीं सकते बिकॉज़ हमारे एरे की साइज कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है. तो एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन हम फिर सीआर स्टेटमेंट डाल देंगे कि our stack is completely filled and we cannot insert further elements into our stack. All right, so that's why हमने इसको कंपेयर किया if टॉप की वैल्यू इक्वल्स टू n-4. तो यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट डालेंगे एक सीधा, सी आउट स्टैक इज फुल फिल्ड, एंड यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं हम एंड द स्टेटमेंट, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन वी विल रिटर्न कर देंगे हमारा फ्लो कंट्रोल रिटर्न कर देंगे यहाँ से. एंड सपोज अगर ये कंडीशन ट्रिगर नहीं होती है, सो एट दैट पॉइंट हमारे टॉप की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे 1 से, एंड आफ्टरवर्ड्स एरे ऑफ टॉप इंडेक्स के अंदर हमारी वैल्यू डाल देंगे x. ये मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था. पहले हम एरे की वैल्यू, टॉप की वैल्यू इंक्रीज करेंगे एंड देन एरे के टॉप वाले इंडेक्स पे हमारी x वैल्यू इंसर्ट कर देंगे. सो दैट वाज अबाउट पुश ऑपरेशन. नाउ कमिंग टू द पॉप ऑपरेशन, void pop. ओके, ऑलराइट. सो टू पॉप एन एलिमेंट सबसे पहले क्या करना है हमको, एक सीआउट अगर
चेक करने कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि हमारा स्टैक पहले से ही खाली है। दैट इज अगर टॉप की वैल्यू अगर -1 के बराबर है दैट मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी है। सो एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन हमारे पास कुछ है नहीं पॉप करने के लिए। सो हम एक सी आउट स्टेटमेंट डाल देंगे कि स्टैक इज एम्प्टी। ओके एंड यहाँ से डालते हैं अंडर स्टेटमेंट बैकस्लैश n सेमीकोलन एंड अगेन यहाँ से रिटर्न हमारे फ्लो को रिटर्न कर देंगे, कंट्रोल फ्लो। एंड सपोज अगर ये कंडीशन ट्रिगर यहाँ पे भी नहीं होती दैट मीन्स हमारे स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट्स है। सो एट दैट लोकेशन सबसे पहले हम एक सी आउट स्टेटमेंट डाल देंगे कि पॉप कर दिया हमने टॉप वाले एलिमेंट, एरे ऑफ टॉप। सो जो एरे का जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको हमने रिमूव कर दिया है एंड आफ्टरवर्ड्स जो हमारा टॉप है वो एक से पीछे आ जाएगा। दैट इज जो टॉप पॉइंटर है वो एक से डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज टॉप माइनस माइनस। ऑलराइट एंड हैंडल पुश हो गया, पॉप हो गया। आफ्टरवर्ड्स एक कर लेते हैं एम्प्टी ऑपरेशन। इट विल बी ऑफ बूलियन टाइप, बूल एंड एम्प्टी। अगर टॉप की वैल्यू अगर इक्वल टू -1 है दैट मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी है। सो हम रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे ट्रू कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। एल्स रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। एंड इस एल्स की जरूरत नहीं क्योंकि अगर मान लो ये कंडीशन ट्रिगर होती है ये वाली, सो हमारा कंट्रोल यहीं से बाहर हो जाएगा। एंड सपोज इफ दिस कंडीशन इज ट्रिगर होती नहीं है कंडीशन, सो एट दैट लोकेशन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएगा। बिकॉज इफ लूप के बाद अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो जो नेक्स्ट लाइन है वो इफ लूप के अंदर कंसिडर होती है, कोई भी लूप के अंदर कंसिडर होती है। ऑलराइट एंड ये हो चुका है एम्प्टी फंक्शन। नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा मेन नॉट मेन टॉप हमने पहले इंप्लीमेंट कर दिया। सो आई थिंक दैट वाज अबाउट द कोड। करते इस कोड इसको रन करते इस कोड को। तो टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे हमने क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने 3 फंक्शन लगाए, पुश, पॉप एंड एम्प्टी। नाउ अब इसको यूज करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास स्टैक का। सो स्टैक सपोज मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ st के नाम से। आई होप यू गाइस रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स कि हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, क्लास कैसे डिक्लेयर करते थे, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है। ऑलराइट उसके बाद हम स्टैक डॉट इसके अंदर एलिमेंट पुश करेंगे। हम पुश सपोज हम पुश करते हैं 5। आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके सो सपोज 5 देन 10 देन 15 एंड देन 20। सपोज मैंने 5 एलिमेंट इंसर्ट करती हैं, उसके बाद मैं सी आउट करूँगा टॉप एलिमेंट, सी आउट st का जो टॉप एलिमेंट है। ओके इंटीजर टाइप के टॉप हमने डिक्लेयर नहीं किया, माय बैड। सो टॉप एलिमेंट मीन्स जो हमारे स्टैक का टॉप एलिमेंट वो हमको रिटर्न होना चाहिए। सो अगर ऐसे में वापस कंडीशन चेक होगी, अगर टॉप की वैल्यू अगर बराबर होती है -1 पे, सो दैट मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी है। सो वहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे -1 एज एन इंडिकेशन कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, वरना रिटर्न कर देंगे हम एरे का टॉप एलिमेंट। ऑलराइट सो या st डॉट अब टॉप फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 20, राइट। एंड सपोज का तो मैं पॉप करता हूँ एलिमेंट, st डॉट पॉप एलिमेंट करता हूँ 2 टाइम्स, कंट्रोल C कंट्रोल V V। ठीक है, मैंने 2 बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो पहले 20 रिमूव हो गया, देन 15 रिमूव हो गया। नाउ st के जो टॉप एलिमेंट्स है यहाँ पे टॉप आना चाहिए 20, देन पॉप ऑपरेशन के बाद आना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं इसको वापस प्रिंट करूँ
टॉप एलिमेंट को। तो पहले 20 रिमूव हो गया फर्स्ट पॉप ऑपरेशन से, देन सेकंड पॉप ऑपरेशन से 15 रिमूव हो गया। नाउ जो हमारा टॉप पॉइंटर है दैट शुड बी पॉइंटिंग टू 10, ऑलराइट। एंड अगेन मैं 10 पे आ गया ना, तो कंट्रोल C कंट्रोल V, जस्ट अ सेकेंड, यस। देन फिर हमारा जो टॉप पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू 10, उसके बाद मैंने एक बार और पॉप किया तो 5 रिमूव हो गया। देन आफ्टरवर्ड जब हम वापस स्टैक डॉट पॉप कॉल करेंगे सो इट शुड प्रिंट कि स्टैक इज एम्प्टी, ऑलराइट। एंड यहाँ पे एक मैनुअल स्टेटमेंट बना देता हूँ जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हैंडल एंड कंट्रोल C V, ऑलराइट। कोड रन करते हैं। ओके, सो देयर इज अ वार्निंग, हम सो कवर करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर इनिशियलाइजेस ओनली अवेलेबल विद स्टैंडर्ड C+11 और ओके, इसको हम हैंडल कर लेंगे। ये बेसिकली क्या है, हमने जो वैल्यूज थी दैट इज ये जो टॉप की वैल्यू हमने इम्प्लिसिटली पहले डिफाइन कर दी, इसको डिक्लेयर करेंगे विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो ये वार्निंग नहीं आएगी। इसको भी चेक कर लेंगे एक मिनट। सो देखो आते हैं हमारे कोड के ऊपर, जो हमने आंसर आया उसको चेक करते हैं उसके हिसाब से। सो फर्स्ट वाला सबसे पहले प्रिंट हुआ 20, सो 20 मीन्स st.top, और st.top पॉइंट करा भी 20 को, सो 20 प्रिंट हो चुका है। आफ्टरवर्ड जब मैंने 2 बार पॉप ऑपरेशन लगाया तो पहले 20 रिमूव हो गया st.pop से, देन अगेन st.pop किया, देन 15 रिमूव हो गया। नाउ आवर टॉप वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू 10, जब हमने वापस करा st.top को प्रिंट किया सो हमारा 10 प्रिंट हो गया। आफ्टरवर्ड जब हमने 2 बार अगेन पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया दैट इज पॉप 10, एंड देन उसको वापस जब पॉप ऑपरेशन कॉल हुआ तो उसने पॉप कर दिया 5 को। नाउ एज अब हमारे इस टाइम हमारा स्टैक कंप्लीटली खाली है। सी आउट कर लेते हैं, बस चेक कर लेते हैं कि सी आउट st.bool फंक्शन कॉल नॉट bool empty फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे कि ये पता लगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। ऑल्सो इसको साथ में ये भी हैंडल कर लेते हैं, इसका ये वार्निंग, जस्ट अ सेकेंड, यू कैन जस्ट या ये वार्निंग कवर करते हैं पहले को। विल डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर स्टैक, एंड इसके अंदर हम हमारे टॉप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ -1। सो आई थिंक इसके बाद हमारा वो आना नहीं चाहिए वार्निंग। दैट्स द कंस्ट्रक्टर मैन। Alright, so you can see 0 errors and 0 warning because of this constructor. इसकी वजह से वो warning चले गए। Now, coming back to this point about st.empty. So इसने प्रिंट कर दिया 1, 1 means कि हमारा जो स्टैक है वो empty है, and afterwards अगर इसके बाद हम again परफॉर्म करते हैं pop operation, तो चेक करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। So according to me it should print कि stack is empty. Alright, कोड रन करते हैं। या स्टैक इज एम्प्टी, ऑलराइट। सो दैट मीन्स हमारा पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, एम्प्टी ऑपरेशन एंड टॉप ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं विद हेल्प ऑफ एरे, ऑलराइट। सो गाइज एक सेकेंड, या alright guys, so that was all about stack array implementation using stack. गलत बोल दिया मैंने, stack implementation using array. Alright, so I think that was all about this particular video from my side. शायद वीडियो थोड़ी लंबी होगी, around 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। ओके, तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे, यहीं तक रखते हैं वीडियो को, एंड इन द नेक्स्ट फर्दर वीडियोस हम कवर करेंगे अबाउट स्टैक के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्रैपिंग रेन वाटर, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दैट ऑफ स्टैक। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम माय साइड। करते इस वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से आपको गुड डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमारी 41 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। ओके, बाय बाय, टाटा।